مولانا علی مینگل کے بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر، او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسنوا ضحایاکم فإنه متاعکم یوم القیامة فإنه لیأتی بقرونها وشعارها وأزلافها، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد وآلہ وعترته بعدد كل معلوم لك۔ میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، ذی الحجہ کے مہینے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مخصوص اعمال عائد کیے، جن میں سے سب سے اہم حج ہے، جس کی مناسبت سے اس مہینے کا نام ذی الحجہ یا ذو الحجہ ہے، یعنی حج والا مہینہ۔ اس کے علاوہ اس ماہ میں، اس مہینے کے اندر ایک خاص حکم جانوروں کے قربانی کا ہے، جو عید الاضحیٰ کے موقع پر کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ذی الحجہ کے متعدد احکام اور بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ذی الحجہ کی جو پہلا عشرہ ہے، پہلا عشرہ یہ مقدس ایام ہے، 8 مقدس راتیں ہیں۔ والفجر ولیال عشر، سورہ فجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جمہور کے نزدیک وہ 10 راتیں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی راتیں ہیں۔ والفجر ولیال عشر، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ حج کا مہینہ ہے اور قربانی کا مہینہ بھی ہے۔ مسلمان جانوروں کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی تائید کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی۔ فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ہمت دی ہے، صاحب استطاعت بنایا، مالدار بنایا کہ وہ قربانی کرے، مگر وہ قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا احسنوا ضحایاکم، اپنے قربانی کے جانوروں کو تم خوبصورت بناؤ، موٹا بناؤ، تر و تازہ بناؤ، فإنه متاعکم یوم القیامہ، یہ تمہارے قربانی کے جانور اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کے جانور کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے سواری کا انتظام فرمائیں گے پل صراط سے پار کرنے کے وقت۔
बोले सिरात पर चलने के वक्त अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए सवारी का बंदोबस्त फरमाएंगे तुम्हारी कुर्बानी की वजह से। इतनी बड़ी फजीलत है कुर्बानी के बारे में। आगे अम्मा आयशा फरमाती है अल्लाह के नबी ने फरमाया इतनी बड़ी फजीलत कि जो बंदा कुर्बानी करता है, जो भी जानवर कुर्बानी करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कुर्बानी के जानवर के जिस्म पर जो बाल है, हर बाल के बदले में अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी करने वाले को सवाब अता फरमाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अहकाम है ज़िलहज्जा की पहले अशरे की। अम्मी अफसा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि 4 चीज़ों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ा, कभी तर्क नहीं फरमाया। फरमाती है कि ज़िलहज्जा के पहले अशरे के रोज़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िलहज्जा के पहले अशरे के यानी यकुम ज़िलहज्जा से 9 ज़िलहज्जा तक ये रोज़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तर्क नहीं फरमाया, कभी नहीं छोड़ा। दूसरे नंबर पर अय्याम बीस के रोज़े, कमरी महीने के, चांद के महीने के, हर महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13, 14, 15 तारीख का रोज़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना फरमाया करते थे। अल्लाह के नबी ने एहतिमाम फरमाया। तीसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा कभी नहीं छोड़ा, आशूरा का रोज़ा कभी नहीं छोड़ा। चौथे नंबर पर फजर की नमाज से पहले जो 2 रकात सुन्नतें हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इन 2 रकात सुन्नतों को तर्क नहीं फरमाया, कभी भी नहीं छोड़ा। इसके अलावा ज़िलहज्जा का जो महीना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस महीने में ज़िलहज्जा के पहले अशरे के अंदर जो आमाल बंदे करता है अल्लाह तबारक व तआला को वो आमाल तमाम आमाल से महबूब है। दूसरे महीनों के जो दूसरे महीनों के अंदर जो आमाल किए जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या दूसरे महीने के अंदर जिहाद है? क्या ये जिहाद से भी अफजल है आमाल है? ज़िलहज्जा के पहले अशरे के आमाल जिहाद से भी अफजल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, मगर वो बंदा जो जिहाद के लिए निकले अपने जान के साथ, अपने माल के साथ, जान भी कुर्बान हो जाए, माल भी कुर्बान हो जाए, इसका अमल ये इससे अफजल है। बाकी ये आमाल ज़िलहज्जा के पहले अशरे के जो आमाल है दूसरों महीनों के बनिस्बत सबसे अफजल है। तो मेरे भाइयों ये चंद अय्याम है, सहाबा किराम तो इंतजार फरमाया करते थे इन दिनों का। सहाबा किराम बड़े दिलचस्पी लेते थे इन अय्याम के अंदर ताकि वो हमारे अमाल में, हमारे नेकियों में इजाफा हो जाए। अब हमारे अकाबरीन से, हमारे बड़ों से, मुकद्दस शख्सियात से ज़िलहज्जा के पहले अशरे के अंदर कौन से अमाल साबित है? कुरान की तिलावत करना साबित है। हमारे अकाबरीन से साबित है कि वो ज़िलहज्जा के पहले अशरे के अंदर कुरान शरीफ का ख़त्म निकाला करते थे, जिक्र और अज़कार किया करते थे और रोज़े रखा करते थे, दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। तो मेरे भाइयों ज़िलहज्जा का महीना जिसमें हम दाखिल हो जाएंगे या दाखिल हो गए हैं, तो मेरे भाइयों हमें एहतिमाम करना चाहिए इस महीने के अंदर, ज़िलहज्जा के पहले अशरे के अंदर, कि हम अपने इन अय्याम को कीमती बनाएं और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हम अपने इन अय्याम को कीमती बनाएं और हम सबसे ज़्यादा इबादत करने वाले बन जाएं। क्योंकि हज का महीना में इस महीने के अंदर है, अरफा का जो दिन है वो भी ज़िलहज्जा के पहले अशरे के अंदर है, कुर्बानी है वो भी पहले अशरे से शुरू होता है 10 ज़िलहज्जा से। इसी तरह बहुत सारे आमाल हैं जो ज़िलहज्जा के पहले अशरे के अंदर है। बस अल्लाह तबारक व तआला हमें इन दिनों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे हम रोज़े भी रखें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, दुआओं का एहतिमाम करें, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए हम दुआ करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।